Hello, everyone. So, yes, I would like to tell you before starting my topic that today I have come after a very long time due to a medical emergency at my home. So, but now I will try to be regular. I'll try my level best to be regular and post your videos about your studies and would not let you wait for that. And I know I have very less subscribers, only 47, and from the 47 I think the 90% are my near and dear ones, my friends, family members, but few must be there who are from outside. But then also I should tell what's going on in my life. Though I would not disclose everything, personal things publicly, but still I would like to tell you. So in your last class I told you the introduction of your statistics of class 11, and then we have also studied about the types of your data which are used in the statistics in economics, that is qualitative data and quantitative data. Then we have explained the examples also, examples of the qualitative data and quantitative data. Quality here means like if how like we are discriminating between people in one region, like who are educated and who are not educated, who are literate and who are illiterate, okay, and who are more educated. अब देखिए, जो हम जब ये देख रहे हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया, इन काउंटिंग हम उसको फिगर वी कैन फिगर आउट, ओके. एंड द क्वालिटेटिव मीन्स वी आर सीइंग द क्वालिटी, दैट द एजुकेशन इज गुड और वर्स, ठीक ठाक एजुकेशन है या अच्छा एजुकेशन है या फिर बिल्कुल ही बेकार एजुकेशन है, ओके, जहाँ एजुकेशन ठीक से प्रोवाइड नहीं की जा रही. सो this is the difference between qualitative and quantitative. Now your statistics is a numerical data, you know, and it is a systematic representation of data where we interpret your data in the field of where you are using the field of statistics, economics, accountancy, mathematics and so on. So but you are studying statistics which is helping you in economics in day-to-day activities of, you know, consumption, your consumption, exchange of goods and production. In these are the main things of main economic activities in your day-to-day life. इसमें आपका stats कैसे use होता है, in your home how it is used, and in where we are showing a systematic data. It can be in graphical form, हम उसको graphical form में भी दिखाते हैं. And graph paper I will teach you how to make your, you know, to show the data in the graph. And then you have pie charts also, tabular form also, table के form में होता है आपका stats. तो आपका first chapter काफ़ी means काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट होने को आया था. ओनली 2 topics were left. That 2 topics we will do it today. And today, yes, today's class will be not so much long, but from your next week, that is the Monday, I have started the first topic today. So the next week we will have your all the classes regularly, and I will try to reach out the long videos through your classes, okay. So what does now today's topic in your stats is, आपका statistics में जो topic है आज, that is what does statistics does, what does statistics does. ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, but it is in economics. I am teaching you from NCERT only. Okay, so as you know, we are now studying today. आप लोग पढ़ेंगे what statistics does in economics, ठीक है.
तो इकोनॉमिक्स में आपका स्टैटिस्टिक्स करते क्या है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन indispensable tool, indispensable tool which figure outs ये फिगर आउट करता है द प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, दैट इज आवर कंट्रीज इकोनॉमी इज मैनेज्ड थ्रू अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये फिगर आउट करता है द प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी वेयर वी फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। ये जब इसको हम फिगर आउट करते हैं मीन्स इसका जो डेटा निकाल के लाते हैं, द इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट थ्रू दैट, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम इसको स्टैट्स को शो करते हैं, जो आप किसी भी चीज़ को लेकर कर सकते हो, लाइक द नेचुरल कलामिटीज, कुदरत का कहर। ओके, अब आपका नेचुरल कलामिटीज में मान लीजिए क्या हुआ है, नेचुरल कलामिटीज में अर्थक्वेक, किसी एक रीजन में मान लीजिए अर्थक्वेक हुआ है, ओके, भूकंप हुआ है, सो अर्थक्वेक हुआ है। सो जब अर्थक्वेक हुआ है तो उससे क्या होगा, आप देख रहे हैं कि मैनी पीपल हैव डाइड इन अ रीजन, तो हम उसका स्टैट्स निकालते हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, और वी कॉल स्टैटिस्टिशियंस एज डेटा साइंटिस्ट ऑल्सो, विच आई हैव मेंशन इन द वीडियो बिफोर दिस। सो वो लोग उसका सर्वे करते हैं, फिर उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके, न्यूमेरिकल फॉर्म में, फिर वो मान लीजिए उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं जिससे उनको पता चलता है, मान लीजिए 300 लोग मरे हैं, यानी 300 पीपल डाइड, ओके, दिस इज करेक्ट। और ये विच फॉर्म ऑफ डेटा है, क्वांटिटेटिव, दिस डेटा इज क्वांटिटेटिव, ओके, ये क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा है, ओके। 300 लोग मरे। अब यहाँ पे इसके जगह पर मान लीजिए न्यूज में बोला जा रहा है hundreds of people died, hundreds of people died. So this is not the correct way to show the data in the statistical form। मतलब ये हमने इसमें स्टैटिस्टिक्स का अच्छे से यूज नहीं किया है, हम एक जस्ट एक एस्टिमेशन कर रहे हैं, यानी कि जस्ट एक अनुमान लगा रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं आगे की, जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल मरे होंगे, इससे आगे हमको नहीं पता, ओके। सो व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स डज, इसको आप बुक में देखिए। स्टैटिस्टिक इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर एन इकोनॉमिस्ट that helps him to understand an economic problem. Using its various method, effort is made to find out the causes behind the help of quantitative and qualitative data and the facts of an economic problem. Once the causes of the problem are identified, तो मतलब जब हम चाहे वो टैबुलर फॉर्म हो, पाई चार्ट हो, whatever representation of data is there, whatever we do, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी विच हैज हैपेंड। ये तो एक नेचुरल कैलामिटीज का एक एग्जांपल था। नाउ वी आर डूइंग पॉपुलेशन, वी आर कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो कंट्री में जब कैलकुलेशन होता है पॉपुलेशन का, तो उस टाइम पे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टैट्स का, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। अब उसके बाद पॉपुलेशन काउंट करने के बाद हाउ मेनी देयर इज अ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब बेबीज जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, उसका रेट कितना, रेशियो कम है या ज़्यादा है, इसका हम लोग निकालते हैं, ओके। देन हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड की बात हुई, अब हेल्थ की बात हो रही है कहीं पर। सो वी आर सीइंग दैट हाउ मेनी पीपल आर मोर हेल्दी और लेस हेल्दी, ओके। सो दिस इज क्वालिटेटिव डेटा विच वी आर फाइंडिंग आउट, ओके। But there is more to statistics. It enables an economist to present economic facts in precise and definite form. मतलब एक precise form में निकालते हैं, that is in proper comprehension of what is stated. When economics facts are expressed in statistical form, they become exact. ये बिल्कुल exact हो जाते हैं,
Okay, statistics also helps in condensing mass data into few numerical measures such as, अब हम इसमें numerical calculations भी करते हैं जो आप आगे जाके करेंगे, that is where we find out from the mass data the average data निकालते हैं, mean, median, mode and variance, which you will study later on. आप इसमें आगे जाके पढ़ेंगे. Okay, you will study later. These numerical measures help to summarize data. For example, it will be impossible for you to remember the incomes of all the people in a data if the number of people is very large. So हम लोग जब लोगों की इनकम को पता चलाते हैं तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड आउट थ्रू दीज numerical problems. Okay, now there are some more examples also which I will explain you over here, जो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं. Let's see. Okay, so what does statistics do in finding out relationships between various economic factors? So इसमें क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स को किस तरीके से आपके इकोनॉमिस्ट निकाल के देखते हैं, that when a price of commodity is increasing, the demand of the commodity is increasing or not. मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है किसी कमोडिटी की का, तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये भी हम पता लगा सकते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज फिर प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका सप्लाई डिक्रीज हो रहा है या नहीं, ये भी आप पता लगा सकते हैं. और डिमांड का क्या होता है, मीन्स आपका डिमांड बढ़ता है या डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है ऑफ एन कमोडिटी व्हेन प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, लाइक इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का रहता है, तब डिमांड का क्या सिचुएशन होता है. ओके, ये भी आप देखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन द एवरेज इनकम इंक्रीजेस. लोगों का कंजम्पशन, लोग कितना यूज कर रहे हैं, लोग का कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो रहा है या नहीं, व्हेन द एवरेज इनकम इंक्रीजेस. एवरेज इनकम अगर सबका इंक्रीज हो रहा है, तनख्वाह बढ़ रही है, आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स पता लगाते हैं with the rule of statistics. Okay, when the price is increased, the demand is also increased or not. When the price is decreasing, the supply is decreasing or increasing. These all things can be sorted out through your data which is represented through statistics. Okay, precise data होता है बिल्कुल आपका commodity का डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस क्या इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. दीज ऑल थिंग्स वी डू with this help of statistics. Okay, now see what are the then your consumption is also there, like how much people are consuming. So the consumption increases or not if the average income increases. अगर लोगों का एवरेज इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्या लोगों का कंजम्पशन यानी कि यूज जो कर रहे हैं अपनी डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये हम लोग पता लगाते हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट फ्यूचर प्लानिंग इन द इकोनॉमिक प्लानर. उसके लिए हम लोग को आगे से आगे की जनरेशन के लिए सेटअप करना पड़ता है, फ्यूचर सेटअप, जिससे हमको पता लगता है दैट वी नो दैट व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स आर बीइंग कमिंग इन द फ्यूचर, what will be the future trends. According to that we set up the economic planning and the factors and make policies and plans. जो हमारा पहले 5 year प्लान हुआ करता था, जो प्लान्स बनाए जाते थे इकोनॉमी में, उनको प्लान्स एंड पॉलिसीज को हम उसी की तरह ही सेटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स
in the society for the future. Like in 2017 we are planning about 2020. Okay, so we have to plan according to that, not only to the present situation. present में जितना है उसके हिसाब से तो हम लोग प्लान कर ही रहे हैं, फ्यूचर में भी हमको प्लान करना है एक सर्टेन टाइम के थ्रू। लाइक मान लीजिए 2 years 3 years 4 years, उस टाइम बीइंग में आपको अपना फ्यूचर सेटअप करना है। ओके, द फ्यूचर जो आपका होगा उसका इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सेटअप करना है। ऑल दीज सेटअप्स आर डन थ्रू योर स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये स्टैट्स जितना भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, सर्वेज किए जाते हैं, उसके बाद उसका फाइनल डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेशन किया जाता है विच इज़ बीन यूज्ड इन योर प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द इकोनॉमी। ओके, सो इसको आप लोग पूरा रीड करिएगा। देन लास्ट लेट्स कम टू द कंक्लूजन, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक, लेट्स एंड दिस टॉपिक। टुडे वी इंक्रीजिंगली यूज स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज, हम लोग सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं यूज़, तो उसके लिए स्टैट्स को यूज़ करते हैं। राइजिंग प्राइसेस, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बेरोजगारी का भी हम लोग दर जो देखते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर बीन सीन थ्रू योर स्टैट्स। पॉवर्टी, कितने लोग गरीब हैं, गरीबी देखते हैं हम लोग, टू फाइंड मेजर्स दैट कैन बी सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ओके, फर्दर इट ऑल्सो हेल्प्स टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसीज इन, उसी हिसाब से हम लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे आगे आने वाले टाइम में लोगों को जो हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं स्टैट्स में, जो नेगेटिव पार्ट दिखते हैं, इट शुड बी डिक्रीज्ड। ओके, सो फर्दर इट ऑल्सो हेल्प्स टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसीज इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन certainly easily used statistical techniques whether the policy of family planning is effective, checking the problem of overgrowing population, means family planning लोगों को करवाने के लिए मतलब आगे आने वाले टाइम में बताया जाता है that you should only produce 1 kid or 2 kids, like in China you have 1 child policies जो अब थोड़े टाइम के लिए बंद कर रहे हैं, फिर वो दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं, बंद किया है बिकॉज एंड दे हैव कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन कंट्रोल ऑल्सो, दे हैव कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन इन दिस country and it was the most populated country in the world, but now your India has crossed that. So there is a somebody has interpret also that some statistician or economist has interpret that in future in 20 to 30 years our India, which is 135 billion crore population, will increase to 157, and it is not a good sign. So family planning should be there where people should will have a restriction होना चाहिए लोगों में to produce 1 या 2 ही बच्चे का मतलब गवर्नमेंट भी आपको उतना ही फैसिलिटी देती है। और चाइना में बहुत स्ट्रिक्ट रूल था 1 चाइल्ड पॉलिसी का, लोगों के पास 1 ही बच्चा था, तो उससे क्या हुआ था काफ़ी टाइम तक पॉपुलेशन कंट्रोल था। Okay, so this thing should be followed in the overly populated country, densely populated country. घनी आबादी वाले देशों में इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। In economic policy, statistics plays a vital role in decision making. Decision making में बहुत बड़ा रोल है आपका स्टैट्स का in economics. For example, in the present time, rising global oil prices, it might be necessary how much oil India should import in 2025. ओके, द डिसीजन मतलब 2025 में इंडिया कितना ऑयल इंपोर्ट करे, जो आज टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, द डिसीजन टू इम्पोर्ट वुड डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड द लाइकली डिमांड फॉर ऑयल इन 2025। जो जितना डिमांड होगा उस हिसाब से ही आपका एस्टिमेशन किया जाता है। ओके, हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं उसको सिचुएशन को देखकर ही what is the price, what is the demand, how is the rising price affecting the people in the country, लोगों को कितना वो असर कर रही है महंगाई होने से, तो उन सब चीज़ों को देखकर ही आपका स्टैट्स को तैयार किया जाता है। Without the use of statistics, it cannot be determined when the expected domestic production of oil and likely demand for it be. Thus, the decision is to import oil cannot be unless we know the actual requirement of oil. जब तक हमको actual requirement नहीं पता होगी कितनी हमको ज़रूरत है, हम उसका एक estimation नहीं बना सकते हैं। ओके,
This vital information helps to make the decision to import oil and can be obtained statistically. ये oil का एक example था. There are many serious problems in our country which should be solved, and all these things are done through the use of statistics. This was your introductions first chapter, meaning how it is used and everything. So that's all for today. In the next class we will have in another subject, another topic. Till then, goodbye.